Let's start. Similarity of right angle triangle. Statement पढ़ते हैं. In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Statement को figure में convert करेंगे. In a right angle triangle, if I draw altitude to the hypotenuse, तो मैंने एक altitude draw किया to the hypotenuse, then the two triangles which are formed by the altitude, both the triangles will be similar to the original one and also to each other. इसको हमें prove करना है. Okay, so I'm going to write down that given, इसमें मैंने एक triangle बनाया, तो this is a figure. Triangle is right angle triangle. इसमें मैंने एक altitude draw किया, that is nothing but the perpendicular segment. Segment BD is perpendicular to segment AC. Okay, अगर ऐसे होता है तो altitude की वजह से जो triangles बने हैं, that is triangle ADB will be similar to the original triangle, and triangle BDC will be similar to its original triangle, and this both small triangles ADB and BDC will also be similar to each other. इसको मैं थोड़ा सा एक स्टोरी लाइन बना देता हूं. एक्चुअली थ्योरी क्या कहती है, तो ध्यान से देखना. ये है बड़ा ट्रायंगल ABC एंड दिस इज द स्मॉलर ट्रायंगल. मैं यूजुअली ABC को डैड समझता हूं, फादर, और ये फादर है तो फादर का ये पहला सन है, ट्रायंगल ABD. अब ये दोनों को मैं सिमिलर करना चाहता हूं. ओके, तो ट्रायंगल ADB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. देखते हैं होता है नहीं होता. चलो मुझे बताओ, दिस फादर ABC एंड सन ADB में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? यस, कॉमन है एंगल A. एंगल A विल बी congruent to angle A. कॉमन एंगल, बिकॉज दोनों ट्रायंगल में आ रहा है. कम ऑन टेल मी, और कौन सी चीज इक्वल है? यस, फादर के पास भी 90 डिग्री है, दैट इज ट्रायंगल ABC, और सन के पास भी एक 90 डिग्री है, दैट इज एंगल ADB. They are congruent to each other just because both the angles gives the measure of 90 degree. Now you tell me, this both the triangle, father और उसका पहला son, will they be similar to each other? Yes, they will be similar to each other, and the reason will be AA test of similarity. सबको clear हो गया? All of you? Great. तो पहला सन तो फादर के साथ सिमिलर हो गया. Now let's move on to the one more son. तो ये है फादर और इसका ये सेकंड चाइल्ड, दैट ट्रायंगल BDC. तो फादर ABC और ट्रायंगल BDC में क्या कॉमन लग रहा है आपको? इन दोनों को सिमिलर करना है हमें. यस, एज बोथ द ट्रायंगल आर हैविंग एंगल C कॉमन. और क्या कॉमन है, और क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? यस, son is having angle BDC as 90 and father is having ABC as 90, both the angles of 90 degree, that's why they are congruent to each other. So you tell me, this both the triangles will be similar by which test? AE test of similarity. Father becomes similar to its first child, father becomes similar to its second child, that is BDC. So now tell me, will these two childs will be similar to each other? These two small triangles will be similar to each other? Yes. So now we can say from equation 1 and 2, if you look at, उनका right hand side equal है तो left hand side भी equal हो जाएगा. मतलब even sons will be similar to each other. In short, this whole triangle
जो आपको दिख रहे हैं तीनों, दे आर फैमिली, फादर और दो सन्स, and this family is called in the geometric language similarity of right angle triangle. आपके लिए मैंने ये पूरा स्टोरी बनाया. Okay, yes, transitivity, exactly, got it everyone, and this theorem will come for 4 marks. अगर आ गया तो छोड़ना नहीं है. Okay, चलो let's move now. तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर का नाम पाइथागोरस सुना है. नाउ इट्स टाइम टू प्रूव दिस पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है. And if we are having right angle triangle, we always use this formula, that is hypotenuse ka square is equal to side 1 ka square plus side 2 ka square. Now this is the time to prove this whole Pythagoras theorem. ठीक है, मैं प्रूव करूंगा, बट प्रूव करने के लिए एक चीज हमें हेल्प कर सकती है. ध्यान से देखो, आई एम गोइंग टू डू द कंस्ट्रक्शन. ओके, मैं क्या करूंगा, मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा टुवर्ड्स हाइपोटेनियस. तो आप मुझे बताइए, हु इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रूव दिस पाइथागोरस? अभी तो हमने किया था. वाह, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेट. क्या इन्वेंशन है आपका? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. फैमिली, दो बच्चे और उसका फादर. गॉट इट? तो आई हैव डन द कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन कर जाने के बाद आई एम गोइंग टू यूज दैट सिमिलैरिटी वाला पार्ट. तो मैं देखता हूं इस ट्रायंगल में, दिस होल ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ओवर हियर आई हैव अ altitude perpendicular to the hypotenuse. So now I can say that triangle ABC, bada triangle, will be similar to the two chota triangles, that is triangle ADB and triangle BBC. ये family है ना, हमें पता है, अभी तो just हमने किया. So they are similar to each other. All three triangles are similar to each other. इनका use करना है आपको to make this theorem, to look this as a Pythagoras theorem. शुरू करते हैं. ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, दिस लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करेंगे. We will surely move to the right hand side. We will see, okay, I want AB square first. AB के ऊपर स्क्वायर है, मतलब AB दो बार आने वाला है. ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स तीनों ध्यान से देखो और आप मुझे बताओ, ये साइड ए बी कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं? क्या पहले ट्राइंगल के अंदर है, ए बी साइड है, साइड ए बी पहले ट्राइंगल के अंदर है. यस. सेकेंड ट्राइंगल के अंदर है. यस. तो चलो, पहले ट्राइंगल के अंदर है, सेकेंड ट्राइंगल के अंदर ए बी है, इनको नीचे लाएंगे, and they are similar to each other according to the similarity of right angle triangle. तो अभी तो हम उनके रेशियोज क्रिएट या बना सकते हैं. they are similar. तो चलो बनाते हैं. मुझे ए बी दो बार चाहिए, मतलब एक ए बी विल बी एट द न्यूमरेटर, सेकेंड विल बी एट द डिनोमिनेटर. इफ आई एम यूजिंग दिस ए बी, पहला और सेकेंड अल्फाबेट, तो सेकेंड ट्राइंगल का कौन सा साइड में लूंगा? ए बी के नीचे. कम ऑन टेल मी, ध्यान से देखना. यस, एडी आएगा. ओके, इफ आई एम यूजिंग दिस ए बी, देखो यहां पे पहला और थर्ड अल्फाबेट मैंने यहां पे लिख दिया, तो ऊपर कौन सा आएगा? ए सी. परफेक्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट विल गिव यू ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. रेशियोज निकले तो यू हैव टू राइट डाउन CSST, corresponding sides of similar triangle. तो यहां तक तो मुझे समझ में आ गया. आई विल पुट दिस एज इक्वेशन 2.
देन मुझे ए बी स्क्वायर तो मिल गया विच इज ओवर हियर। अभी मुझे क्या चाहिए? बी सी स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल के पास है बी सी स्क्वायर? क्या फर्स्ट ट्रायंगल के पास बी सी है? आई वॉन्ट टू बी सी। यस। सेकेंड ट्रायंगल के पास बी सी है? नो। थर्ड ट्रायंगल के पास है? Yes, so we are going to use first and third triangle, but they're already similar to each other. So we can create the ratios. Do remember we want BC two times. One will be at the numerator, second will be at the denominator. If I took this BC, tell me second triangle के कौन से sides आप लोगे? कौन सा side आप लोगे? DC. Perfect, perfect. अगर मैंने सेकेंड ट्रायंगल का BC लिया है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, टेल मी अबाउट द फर्स्ट ट्रायंगल। यस, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। वाह, तो हमें मिल गया BC स्क्वायर 2 बार इज इक्वल टू DC इंटू AC। तो हमें दो इक्वेशन मिले हैं। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ AB स्क्वायर एंड सेकेंड इज ऑफ BC स्क्वायर। दो इक्वेशन तो मिल गए 2 and 3। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे AB मिला, मुझे BC मिला, बट उनके बीच में प्लस साइन है। व्हाट यू विल डू? You will add. So let's add them. That is AB square plus BC square is equal to AD into AC plus DC into AC. अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड इफ यू add, then राइट हैंड साइड भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद इफ यू ऑब्जर्व, I have got AB square plus BC square यहाँ पे on the left hand side. So I'm not going to disturb that side. Leave it as it is. वो तो हमारा काम हो गया। Let's move on to the right hand side. यहाँ पे तो चार चार sides है। I want AC over here. मुझे AC चाहिए। कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो। ये दोनों इक्वेशन को मैं ऑब्जर्व करता हूं, then I come to know that there is something common. There's something common in between. क्या है ये? AC। अगर AC कॉमन है तो उसको बाहर लेके आइए, and AD plus DC will be in the bracket. अभी ध्यान से देखिए, AC तो मुझे मिल गया, बट व्हाट इज दिस इन द ब्रैकेट? AD plus DC, ये क्या है? चलो फिगर में देखते हैं। ये AD और ये DC अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो, दैट विल बी AC itself। तो हमें फाइनली AC इंटू AC स्क्वायर पाइथागोरस हमने प्रूव कर दिया। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? कितना इजी है। एंड दिस सम विल कम फॉर, हाँ थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, लाइक दिस। दिस सम विल कम फॉर 4 मार्क्स, तो भूलना नहीं है। परफेक्ट। अभी हम बढ़ते हैं और एक सम की तरफ। ये सम में एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वी आर हैविंग द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स के लेंथ आर 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं गिवन में लिखूंगा, आई हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल आइसोसेलेस। AB and AC is 13 centimeter and BC is 10 centimeter. आपको क्या करना है? You have to find out the distance between the vertex which is opposite to the base. Tell me the vertex which is opposite to the base. ऐसा कौन सा vertex है जो base के opposite है? Okay. तो आपको distance find करना है from that vertex which is opposite to the base till the centroid. वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। तो पहले हम क्या करेंगे? विल ड्रॉ दिस मीडियन। सेंट्रॉइड आया मतलब मीडियन तो आने ही वाला है।
मैं एक सेंट्रॉइड ड्रॉ करता हूं, दैट इज पॉइंट जी। ओके, तो पॉइंट जी मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद देखिए ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स से लेकर क्या लिखा है, वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड। तो वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस मतलब एजी हमें फाइंड करना है, उसका लेंथ हमें फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हम ध्यान से देखते हैं कि यहां पे तो मीडियन है, देयर इज अ मीडियन, एंड मीडियंस क्या करता है, कम ऑन टेल मी व्हाट मीडियन डज। यस, मीडियन क्या करता है, median divides the side into two equal parts. So can I say that BD is half of BC? Yes. Okay. What is the length of the BC? 10 divide करो 5 सेंटीमीटर, तो हमें एक BD का लेंथ मिल गया। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उसके बाद एक नया रूल आपको पता चल जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसका एक स्पेशलिटी है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, whenever you will see the median to the base, I repeat, in an isosceles triangle, whenever you will see the median to the base, it's also become the altitude. Altitude मतलब perpendicular. इन हिंदी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपको मीडियन दिखता है तो वो मीडियन परपेंडिकुलर सेगमेंट भी हो सकता है। ओके, तो वहां पे अभी तो 90 डिग्री नहीं था, बट ये रूल के बाद यहां पे 90 डिग्री बन गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल है, इसलिए मैंने वहां पे सर्कल किया है। An isosceles triangle, median drawn to the base is also an altitude. Yeah, we can say it is becoming perpendicular to the base. अभी जैसे ही परपेंडिकुलर बना तो ये ट्रायंगल स्पेशल ट्रायंगल हो गया और ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास AB का लेंथ है, आई हैव BD का लेंथ, तो ये AB और BD का लेंथ फाइंड करने का, लेंथ होने के बाद मैं AD का फाइंड कर सकता हूं एंड फाइनली मैं AG मुझे मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। BD is 5, AB is 13, 5 का स्क्वायर, ओके 13 का स्क्वायर इज 169, 5 का स्क्वायर इज 25, 144 and AD will give you 12. Okay, taking the square roots on both the sides. तो हमें फाइनली स्टूडेंट्स AD मिल गया 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां तक तो हमने अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट AG। ओके, student, don't do all this stuff turning on your camera, it creates disturbance to all these students. I request you, otherwise we will report this, we can catch your IP address, do remember that, okay, please don't do that। ये हो जाने के बाद देखो मुझे AG चाहिए, बट आपको पता है ये जो सेंट्रॉइड है, दिस सेंट्रॉइड हैज अ टेंडेंसी टू डिवाइड द मीडियन। तो चलो आप मुझे बोलो, ये सेंट्रॉइड, देखो ये पॉइंट G है ना, ये सेंट्रॉइड है और ये सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है। कितने में डिवाइड करता है, कम ऑन टेल मी। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू रेशियोज, और रेशियो है 2:1, मतलब AG का रेशियो विल बी 2 और GD का रेशियो विल बी 1। बट मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूं, पूरा AD
पूरा का पूरा एडी का रेशियो क्या होगा? अगर एजी 2 है, जीडी 1 है, तो एडी का रेशियो क्या होगा? 3। मैंने वहां पे लिखा है 3, मैंने ऑलरेडी लिखा है वहां पे 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आई वॉन्ट एजी, बट एजी किसका हेल्प लेगा? जीडी का हेल्प लेगा या पूरा एडी का हेल्प लेगा? कम ऑन टेल मी। यस, परफेक्ट। ओके, तो मैं लिखूंगा यहां पे एजी इज इक्वल टू, ओके, एजी का रेशियो क्या है? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजी? 2। And what is the ratio of AD? 3। Because AG is taking help from AD ना, तो AD का भी रेशियो आना चाहिए वहां पे, और बाजू में लिख देंगे AD। It is 2/3, AG is 2/3 of AD। ओके, ये हो जाने के बाद centroid divides the ratio, divides each median in the ratio 2:1। And what is the value of AD? 12। 3 ones are, 3 fours are, and you've got the answer। तो फाइनली आपको AG मिल गया। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमको वो रेशियो समझा नहीं। स्टूडेंट, सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला होता है मीडियंस के साथ, और ये आपको ट्रायंगल चैप्टर में हमने 9th स्टैंडर्ड में बताया था, और जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था तभी भी हमने ये चीज बताई थी कि सेंट्रोइड हैज अ टेंडेंसी टू डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1। ओके, एक साइड का रेशियो विल बी 2, अनदर का जो दूसरा साइड है ब्रेक किया हुआ, दैट रेशियो विल बी 1, पूरा साइड का रेशियो विल बी 3। गॉट इट? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पाइथागोरस कंप्लीट कर दिया। Now we are moving towards the easiest chapter of geometry. It's called as coordinate geometry। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करने जरूरी है। The very first formula is distance formula। ओके, सपोज आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे लाइक दिस। You have to use those coordinate and you have to find out the distance between 2 points. And for that, you required distance formula. And distance formula is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। सिंपल सा फॉर्मूला है। हम सीधा एग्जांपल पे जाते हैं। अगर लेट्स एज्यूम कि लेट जो a के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, b के कोऑर्डिनेट्स दिए, तो a के कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स विल बी x2 y2। ओके, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं लाइक दिस। और मिल जाता है आपको आंसर दिस फैशन। चलो, हम एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल तो ले लिया, अभी हम प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 का 2, सब क्वेश्चन 3, determine whether points are collinear or not। we are having 3 points। आप पहले कौन से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करोगे? कम ऑन टेल मी। You can take any points, but still, okay, I'm going to find out distance of RD first। okay, तो कोलिनियर है या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा।
चलो यूज करते हैं. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ RD इज द होल रूट x2 which is 2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सिंप्लीफाई करो. 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4. 4 प्लस 4 इज 8. क्या आप 8 को ब्रेक करोगे? कम ऑन, चलिए ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा? 4 into 2. 4 will go out and it will become 2 root 2. Okay, so you have got the distance of RD. चलो टेल मी, आप कौन से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करोगे? यस, राइट. आज ही हो गया. आई विल यूज नाउ डिस्टेंस ऑफ DC, DS. The whole root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सिंप्लीफाई करो. 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो इट्स रूट 5. दो डिस्टेंस हो गए. लास्ट डिस्टेंस बताइए. यस, इट विल बी RS. The whole root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सिंप्लीफाई कीजिए. 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16. रूट 25. रूट 25 is the square of which number? परफेक्ट. तो हमें टोटल 3 डिस्टेंस मिले हैं. पहला है डिस्टेंस ऑफ RS which is 5 units and then this remaining 2 distance of RD and DS. इसमें से सबसे बड़ा कौन है? कम ऑन टेल मी. बड़ा डिस्टेंस. यस, 5 इज द बिगर वन. तो अभी हम वो लिखेंगे. डिस्टेंस ऑफ RS will be equal to the distance of the two. कोलिनियर कब होता है? जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है. अब उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो रिमेनिंग दो डिस्टेंस है उन डिस्टेंस को आप ऐड कीजिए. तो ऐड करने के बाद क्या वो डिस्टेंस, मतलब ये 2 रूट 2 और ये रूट 5, इनको ऐड करने के बाद क्या आपको डिस्टेंस RS मिल पाएगा? नॉट पॉसिबल. The distance RS is not equal to the sum of the remaining two distance. That's why. क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे? Come on, tell me. No, well, they will not be collinear. Okay? सबको समझ में आ गया? Yes. Great. प्रैक्टिस सेट 5.1 का 3. Find the point on x-axis which is equidistant from A and B. For that हमारे पास एक x-axis होना चाहिए और x-axis पे एक पॉइंट होना चाहिए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0. मुझे बोलो y कोऑर्डिनेट के यहां पे 0 क्यों आया? कम ऑन टेल मी. x, 0, y कोऑर्डिनेट के यहां पे 0 क्यों आया? बिकॉज यहां पे सिर्फ x एक्सिस है, y एक्सिस है ही नहीं. दैट्स वाई y कोऑर्डिनेट के जगह पे आया 0. और ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एज वेल एज B. ओके, तो चलो अभी कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट कर दिया, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा. इक्विडिस्टेंट है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे.
बट डिस्टेंस तो अभी तक फाइंड नहीं किए हैं, तो फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B. That's why, as they are equidistant from each other, I can say the distance of PA is equal to the distance of PB. चलो, तो we are going to use distance formula. So distance formula पहले हम PA का distance formula apply करेंगे, arrange करेंगे. The whole root. चलो मुझे बताओ, x2 कौन होगा? Who will be x2? Yes, 3. Who will be x1? x2 minus, who will be the x1? Perfect. The whole square. Plus y2 कौन होगा? y1 कौन होगा? Yes, the whole square is equal to, ये तो डिस्टेंस PA हो गया. अब डिस्टेंस PB का डिस्टेंस फॉर्मूला अरेंज करते हैं. चलो मुझे बताओ, यहां पे x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Who will be the x2? Who will be the y? So x1. Who will be the y2? y1. Yes. प्रॉब्लम यह है कि रूट है, तो पहले हम रूट को रिमूव करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स किया, रूट हट जाएगा. ओके. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, -3 और -x द होल स्क्वायर. इमेजिन कीजिए कि ये माइनस और ये माइनस दोनों जगह पे कॉमन है, तो मैंने माइनस और माइनस साइन दोनों कॉमन ले ली, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? टेल मी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर बचेगा x+3 द होल स्क्वायर. ओके. वेल, माइनस साइन तो बाहर आ गया, बट अलोंग विद दैट स्क्वायर भी आएगा ना? यस और नो? माइनस साइन तो मैंने कॉमन ली, आई हैव टुक आउट फ्रॉम द ब्रैकेट, बट अलोंग विद दैट स्क्वायर भी आएगा. तो अभी माइनस का अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? प्लस. तो हम वहां पे प्लस लिखते नहीं, हम इग्नोर करते हैं. ओके. सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वहां पे माइनस रेज टू स्क्वायर लिखा है, फॉर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके. चलो, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. इट विल बी एज इट इज. -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. चलो, कुछ कैंसिल हो रहा है? कौन टेल मी? यस, 16 cancel. Okay. Now what we will do, we will open the bracket, and that will be a square plus 2ab plus b square. ये भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, a square minus 2ab plus b square. कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, कुछ कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर कैंसिल. ओके. अभी हम क्या करेंगे, जिसके वेरिएबल सेम है. ओके. तो 6 के पास x वेरिएबल है, -2 के पास x है, जिसके वेरिएबल सेम है उनको हम एक साथ लाएंगे. ब्रिंग देम टुगेदर. दिस इज 6x और -2x विल बी +2x. उधर का जो 9 है, इट विल कम टू द अदर साइड एंड इट विल बिकम -9. 6x plus 2x is 8x और ये बन गया -8. So x is equal to -8 upon 8. तो x कितना मिल गया? -1. And this is our required x का coordinate. Got it everyone? सबको समझ में आ गया?
Let's move now. Find the coordinate of circumcenter and the radius of the circumcircle of triangle ABC. वन बाय वन हम फाइंड करेंगे. ये है हमारा ट्रायंगल. इस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कमसेंटर. हमने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था सर्कल. वहां पे सर्कम सर्कल, इन सर्कल, ऐसे दो कंसेप्ट थे. ओके, तो सर्कम सेंटर है मतलब यहां पे सर्कम सर्कल है. ये सर्कल का जो सेंटर होता है ना, इस सेंटर को एक स्पेशल नाम है. नॉर्मल सर्कल को हम सेंटर ही बोलते हैं, बट सर्कम सर्कल का जब सेंटर होगा तो उसको स्पेशल नाम है, और वो नाम है सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर. सेंटर ऑफ होम, सर्कम सर्कल का ये सर्कम सेंटर है. तो चलो यहां तक तो मुझे समझ में आ गया. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ये जो P दिख रहा है ना, इस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो फिलहाल लेट दैट बी कोऑर्डिनेट H, K. ओके, उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल कनेक्ट दिस P विद A, आई विल कनेक्ट दिस P विद B एंड देन P विद C. अभी जैसे ही मैंने P को A के साथ, B के साथ, C के साथ कनेक्ट कर दिया, वो क्या लगे? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दे? They equal, but why they are equal? First of all, tell me that. They are radius. Yes, students. They are radius of the circle. Okay, तो मैं लिखूंगा that this PA is equal to PB and this PB is equal to PC. They are equal to each other. Okay, ये हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. पहले हम इक्वेट करेंगे PA को PB के साथ. ओके, तो PA को PB के साथ इक्वेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, तो चलो यूज करते हैं. तो चलो आप बताइए, द होल रूट PA का डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 कौन होगा? अच्छा 3 होगा. वाह. x2 कौन होगा? ओके. x1 कौन होगा? y2 कौन होगा? y1 कौन होगा? ओके, तो ये तो हो गया PA का डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई PB का डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, तो चलो x2 कौन होगा? यस. x1 कौन होगा? y2 कौन होगा? y1 कौन होगा? परफेक्ट, परफेक्ट. ओके सर, यहां पे तो रूट आ गए. व्हाट यू विल डू? क्या करेंगे? स्क्वायरिंग. रूट हट गया. अभी ब्रैकेट ओपन करो. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. 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 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहां पे? कम ऑन टेल मी. यस, पहले कैंसिल होगा h और h. आफ्टर दैट k. उसके बाद नथिंग इज गेटिंग कैंसिल. हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को. उसके बाद मैं देखता हूं किसके पास वेरिएबल सेम सेम है. तो -14 इज हैविंग h, -6 इज हैविंग h. उनको एक साथ लाऊंगा, 6 का साइन चेंज हो जाएगा. -2 इज हैविंग k, -10 इज हैविंग k. उनको एक साथ लाऊंगा.
All numbers I will move on to the right hand side. Then I will do the additions of the same variable. Minus 14 में से 6 गया, minus 8. 10 में से minus 2, that will give you 8 and 16. Okay, तो minus 8, 8 and 16 cancel हो जाएगा. Come on, tell me. तो equation क्या बनेगा? Equation will be minus h plus k is equal to minus 2, and the reason will be dividing throughout by 8. Okay, so we have compressed this equation. आगे बढ़ते हैं. तो मैंने स्टूडेंट पीए को पीबी के साथ इक्वेट कर दिया. अभी कौन से दो साइड्स या दो रेडियस को अभी इक्वेट करोगे? यस, मैंने पीए और पीबी को तो कर दिया. नाउ आई विल इक्वेट पीबी एंड पीसी. देखो पीबी और पीसी, वन मोर टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करूंगा. ओके, देखा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. a square minus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square, and this will be k square. कुछ कैंसिल हो रहा है? Come on, tell me. h cancel, k cancel. जिसके वेरिएबल सेम है उनको अभी हम एक साथ लाएंगे. ओके, तो -6 is having h, -4 is having h. Bring them together. -10k. ओके, तो 10k का कोई साथी ही नहीं है. Leave it as it is. जो नंबर्स है रिमेनिंग, पुट देम ऑन द राइट हैंड साइड. -6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो. You will get this number. Okay, तो -2, -10, -30. क्या ये कॉम्प्रेस हो जाएगा? क्या ये कॉम्प्रेस हो जाएगा? Yes, definitely. तो मैं देखो मैं कैसे कॉम्प्रेस करूंगा. मैं लिखूंगा I'm going to divide it by -2, that is h, 5k and 15k. You know why? I'm dividing throughout by -2 because minus sign हट जाएगा. और for me in the further step it will be very easy to solve. आप 2 के साथ भी कर सकते हो, माइनस साइन आ जाएगा, थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे. ओके, दैट्स अप टू यू. आई एम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2 बिकॉज इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू मी. प्लस साइन निकल जाएगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा. तो आई हैव गॉट 2 इक्वेशंस. ये है पहला, सेकंड और ये थर्ड. मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, किस में से किसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे? यस, ओके. आर यू श्योर सब्ट्रैक्ट करोगे? एक्चुअली हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. तो देखो मैं कैसे करता हूं. इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड प्लस इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड. ऐड करने का तरीका, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड. ओके, नाउ अभी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, टर्म ऑन टेल मी क्या कैंसिल हो जाएगा? यस यस, वर्टिकली कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. h विल गेट कैंसिल. You need to just add the k plus 5k will give you 6k. K is 13 upon 6.
तो हमें k का वैल्यू मिल गया। यू टेल मी हाउ यू विल गेट h का वैल्यू, कौन से इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 या 3, विच इज द इजीएस्ट वन? यस, यू विल सब्स्टिट्यूट इन 2, 3 में भी कर सकते हो, बट 2 इज वेरी इजियर वन। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 करते हैं, इट इज माइनस h प्लस 13/6 माइनस 2, रीअरेंज कीजिए, the 6 will get multiplied with 2 to get 12, and this is how 25/6. ओके, तो हमें h का वैल्यू भी मिल गया और k का वैल्यू भी मिल गया। Got it? Everyone? Yes. सम खत्म नहीं हुआ है, हमने तो सिर्फ फिलहाल यहां पे सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। Now what we are going to do, we are going to find out the radius of the circumcenter. You can take any radius. You can take any radius. I will take a radius PA. मैं PA radius लेता हूं, तो वो रेडियस फाइंड करने के लिए भी हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, बट दिस टाइम वी आर हैविंग h और k का वैल्यू, p के वैल्यूज हमारे पास है, तो चलो यूज करते हैं। दैट इज x2 माइनस x1 क्या है, 25/6 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। 17 का स्क्वायर इज 289/6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49/36, ओके, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 338 को वी विल स्प्लिट, 36 का स्क्वायर इज 6, वी विल स्प्लिट 338 into 169 into 2, तो 169 बाहर आ जाएगा एंड इट विल बिकम 13। This will be the final radius. Got it everyone? सबको समझ में आ गया? Student, now we are moving towards a very important formula known as section formula. बहुत easy है, कुछ hard नहीं है इसमें। We will see how the section formula is working. कोई भी सम में अगर रेशियो दिया जाता है या रेशियोज फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, वर्ड रेशियो आ जाता है, so we are going to use section formula. Okay? सेक्शन फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पहले हम रेशियो सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। द फॉर्मूला इज mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. This is the section formula. When you are going to use, if they ask you the ratios or if they given you the ratios, we are going to use the section formula. शुरू करते हैं। पूछा है find the coordinate of point A which divide the segment PQ in the ratio A is to B. P के coordinates they have given you, Q के coordinate also given you, ratio also given, that is 2:1. Okay? अभी जो पॉइंट फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ए। दिस पॉइंट ए इज डिवाइडिंग द सेगमेंट, तो कोई भी पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी पॉइंट जो डिवाइड करता है सेगमेंट को, वो हमेशा एक्स और वाई होगा। कोई भी पॉइंट जो सेगमेंट को डिवाइड करता है वो हमेशा एक्स और वाई होगा। तो ए इज डिवाइडिंग, तो उसके कोऑर्डिनेट्स विल बी x, 1. It divide a segment PQ in the ratio 2:1. So this P will be x1 y1, this Q will be x2 y2. Ratio दिया है, so we are going to use section formula. Ratio है 2:1, it will get converted to m:n. क्या है section formula?
mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. ओके, m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 1s are 2 and it will give you minus 1 upon 3. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, and it will be minus 1 upon 3. तो हमें फाइनली a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, which is dividing the segment. सबको समझ में आ गया? Yes. आगे बढ़ते हैं. Over here, very important sum. Find the ratio in which point P divide the segment. चलो, तो point P segment को divide कर रहा है ना, तो पहले हम लिखते हैं, हमें ratios find करने हैं, वो कर देंगे. Point P divide कर रहा है segment in the ratio m:n. A, let this A be x1 y1, B be x2 y2. बट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को आप क्या नाम दोगे? यस, कम ऑन टेल मी. परफेक्ट, एक्स एंड वाई. ओके, आपको फाइंड करना है दिस टाइम रेशियो, और उसके लिए भी आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे. सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप के होते हैं, एक्स वाला फॉर्मूला और वाई वाला फॉर्मूला. आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स वाला या वाई वाला, और क्यों? ध्यान से देखना, पी को, पी में एक्स की जगह पे के है और वाई की जगह पे एक नंबर है 7. तो के से तो मुझे रेशियो मिल ही नहीं सकता है, बट वाई की जगह पे जो 7 है, यस, इसका यूज करके आई कैन गेट द रेशियोज. सो आई एम गोइंग टू यूज वाई वाला फॉर्मूला. दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. y का वैल्यू इज 7, m का वैल्यू वी डोंट नो, y2 इज 2. रीअरेंज कीजिए, this 7 will get multiplied with m and n. After that, 7 minus 2 will be 5m. तो m upon n will be 2 upon 5. तो स्टूडेंट्स, हमें रेशियो मिल गया. ये सब में और क्या फाइंड करना है, कम ऑन टेल मी. रेशियो तो मिल गया, और क्या फाइंड करना है? यस, हमें और एक चीज फाइंड करनी है, और वो है की. ओके, रेशियो मिल गया है, मतलब अभी हम रेशियो यूज कर सकते हैं. फाइंड करना है के. सेक्शन फॉर्मूला इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई. तो कम ऑन टेल मी which formula you will use, x or y? Yes, x formula, that is mx2 plus nx1 upon m plus n. x का वैल्यू क्या है, k तो फाइंड करना है. This bar we have ratios 2:5. x2 कितना है, 1. परफेक्ट, 2 into 1. That will be 42 upon 7. 7 1s are, 7 6s are, and it will give you 6. Okay, k का वैल्यू मिल गया, and this sum will be of 3 marks. Okay, सबको समझ में आ गया, all of you? तो अभी हम बात करेंगे और एक फॉर्मूला की, जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. ओके, दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट वर्ड आ जाए
तो समझ जाना, we are going to use midpoint formula. Formula is very simple. The formula is x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. आई रिपीट, ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब वर्ड मिड पॉइंट आएगा. ओके, I hope you understand the whole stuff what we taught, what I'm teaching right now. सबको समझ में आ गया concept properly? कुछ doubts regarding this? Yeah, thank you. Well, student, don't go away. We have already ended this session, but आपको नहीं जाना है. You have one more session with you. Thank you so much and God bless you all. We will see you tomorrow with new concept of coordinate geometry as well as circle. Okay, thank you.